اقبال حبیب. اس وقت دی لوکل جرنلسٹ کی ٹیم موجود ہے کیننگ اسٹریٹ اور کولیٹرل اسٹریٹ کے جسٹ کراسنگ میں موجود ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ بھی 21 رمضان ہو چکی ہے اور 21 رمضان چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت منائی جاتی ہے 21 رمضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج خاص طور پر مسلم سمودائے میں جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کی جانب سے جو ہے زنجیرہ ماتم کا اہتمام کیا گیا ہے یہاں پر کیننگ اسٹریٹ میں. تو آئیے بلا تاخیر جو ہے بنا وقت ضائع کہ آپ کو روبرو کرواتے تمام یہاں آئے تمام لوگوں سے باتیں بھی کرواتے ہیں. میں آپ کو اندر کی جانب لے کر چل رہا ہوں. مگر علی کی نظر میں نمک بھی نعمت تھا. زیادہ کہا ایک نعمت ہٹا لو. ام کلثوم نے ہاتھ بڑھایا کہ نمک ہٹا لیں. بیٹا کام کرو یہ دودھ کا پیالہ ہے. اور یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس جلوس میں حصہ لینے آئے ہیں اپنے گارجین کے ساتھ. شب جو ہے ہمارے یہاں شب قدر مانی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ علی کی بیٹیاں بھی سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی دیکھا یا اللہ دیکھا یا اللہ دیکھا یا اللہ بے محمدی بے محمدی بے محمدی. اور ایک مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں بے علی بے علی بے علی. اب ام کلثوم کا بیان ہے کہ میرا بابا بار بار مسلح سے اٹھتا تھا آسمان کو دیکھتا تھا. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری کہ یکایک دروازے کے اوپر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. جیسے ہی ٹاپوں کی آواز آئی علی اپنی جگہ سے اٹھے دروازے پہ آئے. آنے کے بعد آواز دی کون. جیسے ہی علی نے یہ کہا کون سارے سوار اپنے اپنے راہوار سے اتر گئے اور سب نے چہروں سے نقاب اٹھائی. مولا کوئی اور نہیں میں عبداللہ ابن عفیف ہوں. دوسرے نے آواز دی مولا میں ابراہیم ابن مالک اختر ہوں. ادھر سے تیسری آواز آئی مولا میں حذیفہ یمانی ہوں. ایک مرتبہ علی نے کہا تم مسلح عبادت چھوڑ کے یہاں کیا کر رہے ہو. کہ مولا آپ کے بیانات سے ڈر لگنے لگا ہے. مولا ہمیں خوف ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. عزیزوں بس جیسے ہی جناب تینوں نے یہ جملہ کہا کہ یا علی آپ آرام سے عبادت کریں ہم دروازے پہ پہرا دیں گے. آپ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. آپ بازار آئیں گے ہم آپ کے ہمراہ رہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. مگر علی تو علی نے ایک جملہ کہا تم جانتے ہو نا میں امام ہوں. کہا مولا ہم امام آپ امام ہیں. کہا تو علی تمہیں حکم دیتا ہے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. بس اتنا علی کا کہنا تھا. سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو لیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف کو لوٹے. وہ ویسا ہی یمانی گھر میں آیا تلوار کو ایک طرف پھینکا ابا اتار کے پھینکی ماما اتار کے رکھا. اس کے بعد زمین پہ بیٹھ گیا دونوں ہاتھ رکھ کے اور ساروں سہار رونے لگا. اتنے میں سوجائے حذیفہ آئی. آنے کے بعد کہتی ہے کیا ہو گیا ہے. علی کا سپاہی ہو کے روتے ہو. علی کے سپاہی شیر ہوا کرتے ہیں وہ رویا نہیں کرتے. کرو اسی لیے تو رہا ہوں کہ علی نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ. مگر زوجہ بھی پختہ ایمان تھی کہتی ہے گھبرا کیوں رہے ہو. علی کے گھر میں تو شیر حسن ہے. علی کے گھر کے اندر دوسرا شیر حسین ہے. اور اب جو تیسرا نام لیا کہ علی کے گھر میں تو عباس جیسا شیر موجود ہے. علی کے گھر میں عباس جیسا شیر موجود ہے. حذیفہ کہتا ہے میں نے عباس کا نام سنا مجھے سکون ہو گیا. ارے کہا عباس موجود ہے.
के नहीं गया, फिर भी मेरे दिल में गम इतना था, वही जमीन पे सर रख के लेट गया। थोड़ी देर रोते रोते आंख लगी, अभी आंख लगी थी कि यकायक मेरी सौदा दौड़ के आई। उसने मेरे बाजुओं को पकड़ के एक मतलब छटोड़ा और छटोड़ के कहती है, तू सो रहा है, जरा फिजा में देख ये आवाज कैसी आ रही है। जरा गौर से सुन ये फिजा में आवाज। हुदैफा कहता मैं दौड़ के घर से बाहर आया। आने के बाद मैंने कान लगाए तो दो आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। एक आवाज थी, कुछ तो मेरा दिल का सुनेंगे। एक आवाज, कुछ तो मेरा दिल का और एक आवाज, कद खोतेला अमीर अल-मोमिनीन। खुदा का कहता मैं दौड़ा, मस्जिद की तरफ दौड़ा। अब जो मस्जिद की तरफ दौड़ रहा था, मैंने देखा कूफे के हर घर से आदमी निकल रहे थे, लोग निकल रहे थे, मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे। मैं मस्जिद में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, अली के बच्चों ने अली को मस्जिद के सुतून से लगा के बिठा दिया। अली सुकून से टेक लगाए हुए बैठे थे। दूसरा जुमला गौर से सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मैंने फिर निगाह डाली अली के ऊपर तो मेरी निगाह अली के सर पे गई। अब जो मैंने सर की तरफ देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे करबला में अब्बास का सर शिगाब हुआ, वैसे ही अली का सर। अली का सर ऐसे शिगाफ हो गया जैसे किसी ने कुरान को खोल दिया। मैं करीब गया, मैंने देखा, अभी थोड़ी देर गुजरी थी, बस घर तक लाना है और बात तमाम कर दूंगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि कुछ लोग गए और इब्ने मुलजिम को पकड़ के ले आए। उसे लाके दूसरे सुतून से बांध दिया गया। उसके बाद किसी ने कहा अली को थोड़ा दूध पिलाओ। अब जब किसी के भी चोट लगती है तो या पानी या दूध पिलाया जाता है। यहाँ तो खून बह रहा था, लिहाजा अम्मा में से इमाम हसन ने सर को बांधा। उसके बाद दूध का प्याला आया। अली से कहा गया या अली ये थोड़ा सा दूध पी लीजिए। अली ने उसी आलम में आंखों को खोला और एक मरतबा सर को घुमा के देखा कि इब्ने मुलजिम उधर सुकून से बचा हुआ है। यातायात अली की निगाह उसके होठों पे गई, होठों को देखा सफेद हो गए हैं। बस एक मरतबा अली ने प्याला लिया, प्याला लेने के बाद उधर देखा, उधर देखने के बाद अब जैसे ही अली ने उधर देखा सारे लोग समझ गए ये प्याला इब्ने मुलजिम को अली देना चाहते हैं। हर एक ने सर को झुका लिया। अब कोई अली को नहीं देख रहा है। कहीं ऐसा ना हो मेरा मौला मुझसे कह दे, कहीं ऐसा ना हो मेरा मौला मुझसे कह दे। अली ने सबको देखा, देखने के बाद एक आवाज दी। इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, बाकी असहाब भी हैं, सबने सर को झुका रखा है। कोई अली से आंखें नहीं मिला रहा। अली ने एक मरतबा सबको देखा और सबको देख के आवाज दी अब्बास, अब्बास मेरा गाजी कहाँ है, मेरे शेर मेरे करीब आ जाओ। अब्बास तड़प गए, करीब आए। जी बाबा क्या करना है? ये दूध का प्याला लो और इब्ने मुलजिम को जाके पिलाओ। कोई है बेटा जो बाप के कातिल को दूध पिलाए? कोई है ऐसा करीम जो अपने कातिल को दूध पिलवाए? अब्बास ने दूध का प्याला लिया और एक जुमला कहा, बाबा आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं इसे दूध पिलाऊं?
बाबा किसी और को हुक्म दे दीजिए, यहाँ असहाब मौजूद हैं, गैर मौजूद हैं, इनमें कोई एक जाए दूध उसे पिला दे। अली ने कहा बेटा मैं तुझे सब्र सिखाना चाहता हूँ कि सब्र किसे कहा जाता है। अब्बास ने दिया ला लिया, खुदा किसी गम में न रुलाए। अब साथियों ने कहा अली को उठाया जाए और घर ले जाया जाए। तारीख में लिखा है कि जिस चटाई पे अली थे उसी चटाई में अली को उठाया गया। ये 19 रमजान है, मस्जिद की मेहराब खून से रंगीन बनी और दो शख्सियतें हैं, दोनों सजदे में कत्ल हुई हैं। अली को सजदे में जरबत लगी, हुसैन को सजदे में कत्ल किया गया। यानी मैं कायनात वालों को बताना चाहता हूं, जो नमाज में हमला करते हैं वो और हैं, जो नमाज में शहीद होते हैं वो और। लिहाजा अली को उठाया गया, उठाने के बाद सबने सहारा दिया, लेके चले। अभी दरवाजे के करीब पहुंचे थे, अली ने कहा एक काम करो, मेरी चटाई नीचे रख दो, मुझे नीचे उतार दो। लोग हैरान हो गए, या अली आपसे चला नहीं जाएगा, आप कैसे चल के चलेंगे। अली ने कहा नहीं, मुझे सहारा दो, मैं अपने पैरों से चलूंगा। इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा सहारा दे के आगे बढ़े, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो आपको गोद में उठा के ले जा रहे हैं। कहा बेटा तुम नहीं जानते हो, जब मैं घर से चला था तो अपने पैरों से आया था, अब अगर ज़ैनब देख लेगी तो मैं हाथों पर आया हूँ, मेरी ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकेगी। बेटा मैं अपने पैरों से चलूंगा। अली सहारे के साथ कदम बढ़ाते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। अली ने देखा बेटियां दरवाजे पे है, फौरन इमाम हसन की तरफ मुड़े, बेटा इन असहाब से कह दो कि दूर चले जाए। बाबा ये मोहब्बत में आए हैं, आप इन्हें दूर क्यों भेजना चाहते हैं। का बेटा तुम नहीं जानते, अभी मेरी बेटियां देख के दहाड़े मारेंगी, मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों की आवाज मेरे असहाब के कानों तक चली जाए। मैंने संताप गया, मैंने कहा या अली कूफा है, असहाब को भेज दो, मगर एक बात आएगा, यही कूफा होगा, यही ज़ैनब होगी, सर पर रहना होगा, न चादर होगी, बस ज़ैनब होगी। कूफे वालों पहचान लो, यही अली की बेटी है, इसी को ज़ैनब कहा जाता है, जिसके पर्दे का एहतमाम इतना था, आज वही सर पर रहना कूफे है। या अली 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 हाय अली। भाई जंजीर मारने वालों को जगह दें, जो जंजीर मार रहे हैं तो हट जाए दूर से, और जंजीर मारने वाले सब जगह बनाए अपने अपने। जंजीर यहाँ सुनेगा, हम आगे चलेंगे। जंजीर मारने वालों को जगह दें और जंजीर मारने वाले अपना जगह बनाए। दोस्तों आपको बता दूं, इस वक्त हम कैनिंग स्ट्रीट में मौजूद हैं और आपको जैसे कि इससे पहले ही हमने बताया कि 21 रमज़ान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है शहादत मनाई जाती है। शहादत को जो लेकर जो है लोग एहतजाज करते हैं ख़ास तौर पर। मामू जी 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 मामू अफ्तार में। अच्छा कमेटी में जी जी। तो नाज़रीन आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, और अब जो है थोड़ी देर में जो है जंजीर मातम जो है शुरू होने वाली है। तो हमारी टीम आपको लगातार दिखा रही है
आपको बता दूं कि किस रमज़ान के दिन जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है शहीद कर दिया गया था। मुलजिम इब्न पिसर के हाथों से वो शहीद हुए थे जब वो फजर के वक्त नमाज के लिए गए थे, नमाज पढ़ाने गए थे। सुबह मस्जिद में अजान दी और मुलजिम इब्न पिसर जो है अपने दोनों साथियों के साथ जो है उस मस्जिद में वो भी दाखिल था और सोकर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत करने की नीयत से वो पहुंचा हुआ था और उन्हें उठाकर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उसे कहा कि तुम एक काम, मस्जिद में जो है फजर के वक्त सोना सही नहीं होता है और चूँकि नमाज के लिए खड़े हो जाओ, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज जब वो इमामत कराने के लिए आगे जाते हैं और नमाज जैसे शुरू करते हैं और सजदे की हालत में जैसे वो जाते हैं तो मुस्लिम इब्न पिसर के जो साथ में जो साथी रहते हैं वो पहले वॉर करते हैं और पहली वॉर जो है बच जाती है, लेकिन दूसरी वॉर जो मुस्लिम इब्न पिसर की रहती है वो उसके वॉर से जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। आपको बता दूं कि जिस तलवार से जो उन्हें ज़ख्म किया गया था वो तलवार लगभग हफ्ते दिनों से जो है जहर में डुबो कर रखा गया था और उस जहर के ज़ख्म की वजह से जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है शहादत हो जाती है। और जिस वक्त जब जो है शहादत होती है, जब उन्हें तलवार से मारा जाता है, उस वक्त लोग जो है मुलजिम इब्न पिसर को जो है पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। मुलजिम इब्न पिसर के जो है शिकन पर जो है मौत का डर सताया रहता है, लेकिन उस हाल में भी जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लोगों से कहते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए, उसे एक साफा मारकर छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है सब्र करने का जो ये तरीका जो है, ये तरीका तमाम जो है उम्मत मुस्लिमा को बताई। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, और मैं और भी तमाम लोगों से बातें करूंगा और बातें कर जानने की कोशिश करूंगा। अरे भाई, अरे भाई जुलूस शहादत मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम अंजुमन शमशीर बासी की जानिब से ये जुलूस का एहतमाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज सर शहादत हज़रत अली क्या कहना चाहेंगे सर? ट्रेजेडी इस्लाम है ये इस्लाम के ऊपर में ज़बरदस्त हमला था इस्लाम को तारनिश करने के लिए। कि शहादत इस्लाम को ज़िंदा कर दी, हुसैन ने भी ज़िंदा किया और मौला अली तो इन्होंने पिलर डाला है शहादत के ज़रिए कि हम इस्लाम को हमेशा तक रोज़ क़यामत तक ज़िंदा रखेंगे। सर जिस वक्त उनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं मुलजिम इब्न पिसर ने जो हमला किया तो उन्होंने भी कहा कि एक साफा मारकर छोड़ दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सब्र का कितना बड़ा जो है एक मिसाल उन्होंने दी। नहीं, ये इस्लाम का कानून ही है सही कि जितना आपने किया है उतना ही आपको मिलना चाहिए। ज़ाती इस्लाम में कभी भी नहीं है, हमेशा मुनासबत से रखा। अगर हमने एक थप्पड़ खाया है तो आपको एक ही थप्पड़ से देंगे। जिस तरह आपने किया उसका उतना ही से ज़ाती आप पर किसी भी हाल में अलाउ नहीं है। इस्लाम की यही खूबी है और उसी पे मौला ने अपनी जान कुर्बान करके साबित किया। जब मुलजिम इब्न पिसर को कैद किया गया, लोगों ने पकड़ लिया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम अहले बैत हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी भी जो है किसी को पकड़कर किसी की लाश के साथ जो है खराबी ना की जाए, उसकी लाश को काटा ना जाए, बर्बाद ना किया जाए। ये एक पैगाम दिया गया, क्या कहेंगे? हाँ, ये दुरुस्त है। यही इस्लामी तरीका है, यही इस्लाम की तारीख है, यही इस्लाम सिखाता है। आज के दौर में भी इस्लाम भी यही बताता है, लेकिन वक्त हालात बदलते रहते हैं, वक्त के साथ साथ वक्त अपना कारनामा दिखाता रहता है। ये बताया ही इस्लाम के इसीलिए कि आपको रसूल खुदा के बोल इस्लाम है, कोई मजाक तो नहीं है।
अब दुनिया का सबसे बेहतर मजहब है इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ब्रांड का फोटो ले लिए प्लेन से ले लिया, थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जुलूस शहादत मौला कायनात इमाम अलैहिस्सलाम की ये जो है जुलूस निकाली गई शहादत को लेकर, और ये जुलूस जो है अंजुमन शमशीर अब्बासी की जानिब से लश्करी तालाब उनकी जानिब से ये जुलूस का एहतमाम किया गया है। इधर इधर रुक जाइए, हम लेते हैं इंटरव्यू। हाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिफ्जुर रहमान साहब, और मैं हिफ्जुर रहमान साहब से हिफ्जुर रहमान साहब से मैं बातें करूंगा, और मौला कायनात हज़रत अली सलाम के बारे में जो है आज उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, सजदे में शहीद कर दिए गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने, क्या कहना चाहेंगे? जहां अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने एक साजिश के तहत सजदे में वार किया, और तीसरे दिन यानी आज की सुबह वो पर्दा कर गए इस दुनिया से, और इस ज़रबत लगने के बाद बेसाख्ता जो ज़बान पे अल्फाज आए वो कि रब काबा की कसम मैं कामयाब हुआ। आप जानते हैं रब काबा कहाँ है, काबे में वो पैदा भी हुए हैं, और मस्जिद अल्लाह के घर में पैदा भी हुए हैं, और अल्लाह ही के घर में सजदे की हालत में ज़रबत लगी है। अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक शेर है, हुए काबा में पैदा शहादत पाई मस्जिद में। बेशक। तो ये आपके कहे पे मुझे शेर याद आ रहा है, 4 मिसरे अगर जहन में आ जाएं। पस मंज़र ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होने वाले थे तो मरियम उनकी वालदा वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारा पहला काबा है उसकी तरफ बढ़ी थी, तो डांट पड़ गई अल्लाह की तरफ से। सूरे मरियम और दूसरे इसमें आप पढ़ें, कुरान की गुफ्तगू में अपने अल्फाज में कर रहा हूँ कि डांट दिया अल्लाह ने कि ये काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम फलानी जगह जाओ, वो पेड़ है, और वहाँ वो सूखा हुआ पेड़ था, उसकी बरकत थी, फल हुआ, वहीं पानी हुआ और विलादत हुई, आप जानते हैं। मगर हज़रत अली की वालदा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद को जब ये दर्द ज़ेह विलादत की तकलीफ़ महसूस हुई है तो वो काबे की तरफ बढ़ी हैं, और 40 फीट की ऊंची दीवार में शक हुआ जिसे जदार काबा कहते हैं, और वो उसमें दाखिल हुई हैं और वहीं विलादत हुई है। 3 दिन तक बच्चा वो रहा है जिसे आप अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। 30 दिन तक उस बच्चे ने ना आँख खोली है, न माँ का दूध पिया है। बेचैनी बढ़ी है, उस फटी हुई दीवार से बुलवाया गया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो आए हैं तो जनाब फ़ातिमा बिन्त असद ने तड़प के कहा कि ये बच्चा न रोता है न दूध पीता है। तो हज़रत ने कहा कि लाओ लाओ मेरे भाई को मुझे दो, और रसूल अल्लाह ने हाथों पे रखा है और हज़रत अली ने आंखें खोली हैं
گویا کہ تاجدار انبیاء سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا دیدار کرے گا علی تو ان کی کرے گا، ماں کی نہیں کرے گا۔ آنکھ کھولی ہے پھر زبان چسائی ہے۔ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کی رسول کی حدیث بھی اسی پس منظر میں کہ زبان کیا چسائی کہ پھر علم ہی اتنا دے دیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، جسے علم حاصل کرنا ہے وہ اس در سے آئے۔ میں اس گفتگو میں ایک پہلو آپ کو بتا دوں، کہیں جھوٹی روایت بھی آج اس 1400 سال میں کہیں نہیں ملتی چیلنج کے ساتھ کہ رسول اللہ نے، بچہ کہتے ہیں ناپاک ہوتا ہے نا، ہاتھ دھویا ہے یا علی کو غسل دیا گیا ہے یا کعبے کو دھویا گیا ہے، یہ جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، اس نور کا کو دو حصے میں کیا، ایک میں اور دوسرا علی، تو یہ نور ہی نور تھے۔ اور پھر وہ جدار کعبہ کے سلسلے سے میں کہوں کہ آج بھی حکومتوں نے دشمنی علی میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آج بھی اس میں اس طرح کے نشان ہیں، اور آج بھی 6 انچی سیسا پلایا ہوا ہے جدار کعبہ کے اعتبار سے۔ اب سنیں آپ، میر خسرو کا آپ نے نام لیا ہے تو اسی پس منظر میں 4 مصرے سنیے۔ بھلا کیوں رد سوال حضرت مریم نہیں ہوتا، بھلا کیوں رد سوال حضرت مریم نہیں ہوتا، ہر ایک بندہ خدا کے راز کا محرم نہیں ہوتا، اور خدا ہی جانے عظمت حیدر کرار کی، ورنہ زچا خانہ کسی کا قبلہ عالم نہیں ہوتا۔ تو یہ عظمت علی کے سلسلے سے شاید آپ مجھ سے 24 گھنٹہ کہلواتے رہیں اور کہتے رہوں، اور بغیر حضرت علی کو سمجھے بغیر اسلام کو سمجھنا ناممکن ہے، اور علی کی ذات کی عظمت کی بلندی کو بتصدق رسول اللہ اگر سمجھ لیا جاتا تو یہ 72 فرقے نہ ہوتے، یہ نفاق نہ ہوتی، یہ دوریاں نہ ہوتی، بلکہ اس بات کو یوں موڑ دے کہ آج ہندوستان میں جو مسائل ہیں اور اپنی اپنی دکان ہم کھولے جو بیٹھے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے، اس لیے کہ ابھی عظمت علی سے ناواقف ہیں۔ اور میں اس لیے یہاں پہ ہوں کہ رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ اپنی بزم کو، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے رونق برونق کیا کرو۔ رسول کی دوسری حدیث یہ ہے کہ اے علی تیری ذات کعبے کی مانند ہے، تیرا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک مسلسل سلسلہ ہے عظمت علی کے سلسلے سے۔ آپ دوسرے سوال کریں تو میں بولتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ میں تھوڑا ماتم دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ زنجیر ماتم کی جا رہی ہے، اور ویورز کو دکھا نہیں سکتا ہوں بلڈ کی وجہ سے کیا ہے کہ کمیونٹی سٹینڈرڈ لگنے کی چانسز رہتی ہے۔ اور میں کافی دور سے جو ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت جب انہیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جب وار کی گئی تو انہوں نے جو ہے ملزم ابن پسر کو، جب لوگ انہیں پکڑ لیے تو انہیں کہا کہ میرے اوپر اس نے ایک وار کیا، اس کے اوپر بھی ایک کی جائے۔ یہاں جو ہے ایک طریقے سے حکومت، جسٹس، تمام چیزوں کی جو ہے گواہی دی جا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ تیسرے دن انہوں نے پردہ کیا ہے تو اس درمیان میں ایک وصیت نامہ تیار کروایا انہوں نے۔ امام حسن اپنے فرزند جو دوسرے امام، اس میں یہ باتیں کہی ہیں کہ اس کو مجھ پہ زیادہ، اس پہ اتنی اذیت نہ دو جس کا اس اذیت کا مستحق نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کردار کا کہ ان کے سامنے اس تکلیف میں خون بہت بہہ گئے تھے، کمزور بہت ہو گئے تھے، تو
بیٹی نے پیش کیا ہے کہ صاحب ہم تھوڑا دودھ اور نمک جو عرب کی تہذیب ہے 2 چیزیں لا کے دی ہیں، تو ان کہا کہ بیٹا تم جانتی ہو کہ ایک وقت میں ایک ہی اللہ کی نعمت قبول کرتا ہوں۔ تو بیٹی کی محبت میں انہوں نے کہا کہ بیٹی تو دودھ پی لیجئے۔ ان کا نہیں بیٹا، دودھ اس کو لوگوں نے مارا ہے، جا کے دودھ اس کو دے دو جس نے اس پہ وار کیا ہے، اور نمک چاٹ کے رہ گئے وہ۔ یہ عظمت علی اور فکر علی ہے کہ کس طرح سے ظالم و ظلم کرنے والے پر بھی اس پہ زیادہ اسے تکلیف نہ دی جائے، یہ کردار علی تھا۔ اور آپ کو میں اپنی طرف سے کہوں کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آج بھی ہندوستان کی مختلف خانقاہوں میں امام باڑے ہیں، اور حضرت علی کی نسبت سے جو ہے ذکر علی کیا کرتے ہیں یہ 3 دن لوگ، چاہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، یا خواجہ اجمیری ہوں، یا وارث علی شاہ ہوں، یا بختیار کاکی ہوں، یا تاج الاولیاء ہوں ناگپور، وہاں 3 دن تاج الاولیاء اپنی حیات میں نے سوانح عمری پڑھی ہے، نہایت غمگین، اور 19 سے 21 تاریخ تک پر وہ پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غم حسین اور غم علی اپنے اپنے طریق سے اس کو ہمارے اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ماتم ہی کیا جائے، لیکن رسول کے گھر میں اگر غم ہوتا ہے تو ہم میں جس طرح سے ہمارے اندر میں ہو غمگین ہو، اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس تصور سے پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور عظمت علی کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرے۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، تھینک یو۔ کے بعد نہیں بھیجیے گا، اور فیس پہ کنورٹ کیجیے گا۔ چل لیں بھائی کماری، ہاں جو ہے نا ہمارے گورنر اس کے بارے ہم کو پتا ہے، سمجھ رہے امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں۔ मातम के लिए बात ये रहा السلام علیکم، آئیے آئیے تھوڑا امام صاحب کا انٹرویو دیکھیں تھوڑا سا۔ ہاں وہاں تھا نا، بلا لو۔
اور ہم جو ہے آپ کو ہاں جی ملے بولتے ہیں امام صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. امام صاحب چلے گئے اوپر چلے گئے آواز دینے آئیں گے. چلیے نا. اور میں آپ امام صاحب سے بات کر ان سے جانکاری لینے کی کوشش کروں گا. یہاں گئے ہاں میں امام صاحب سے بات کروں. مولانا جی جی گلی میں تھے تو گلی میں ملاقات نہیں ہوا. نہیں السلام علیکم. نیچے اور میں امام صاحب سے جو ہے باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. ہاں یہاں کر لیتے آجیے آپ جائیے. السلام علیکم امام صاحب. جیسا کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شہادت جو ہے سر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آج ہمارے پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا روز شہادت ہے اور اس سلسلے میں ہم پوری دنیا کو بس ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے امیر کو صرف اور صرف اس بنا پہ قتل کیا گیا کہ یہ نبی کا دین لے کے آگے بڑھ رہے تھے، نبی کے دین کو پھیلانا چاہتے تھے، کائنات میں نیک کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکنا چاہتے تھے. لہٰذا وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ نبی کا پیغام کائنات میں عام ہو، انہوں نے مولا کائنات کے سر کے اوپر 19 رمضان کو ضربت لگائی اور آج 21 رمضان ان کی شہادت واقع ہو گئی. سر یہ سازش کے تحت جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، قتل کیا گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابتدا سے لے کے آج تک اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. آج بھی اسلام سازشوں سے الگ نہیں ہے. آج بھی جو واقعاً دین کو دین بنا کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روک دیا جاتا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ ظالموں کے پاس طاقت ہے، ظالموں کے پاس قوت ہے، ظالموں کے پاس حکومت بھی ہے، لہذا وہ حکومت سے، طاقت سے، قوت سے، دولت سے ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ اسلام کچل دیا جائے. آج بھی یہ کام ہو. حضرت علی پر جب ظرف گرا، پہلا ظرف لگا، تو انہوں نے جو ملزم ابن پسر کو جب لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ اس پر بھی ایک ظرف مارو اور چھوڑ دو. یہ بہت بڑی بات کو جو ہے درشاتا ہے کہ جسٹس، جو اسلام میں جو جسٹس کی جو اہمیت دی گئی ہے، وہ کتنا بڑا مقام. نہیں، علی نے ایسا نہیں کہا ہے کہ اسے ایک ضرب مارو. جب ابن ملزم کو پکڑ کے لایا گیا ہے اور مولا کائنات نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اس کے ہونٹوں میں سفیدی چھا گئی ہے، علی کو بڑا درد ہوا. تو اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ وہ دودھ جو مولا علی کے پلانے کے لیے لایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دودھ اسے پلا دیا جائے، اس لیے کہ میرے سے زیادہ ضرورت دودھ کی اسے ہے. اسلام اس پیغام کا نام ہے، نہ کہ
सॉरी सर, और एक चीज़ देखा गया कि उन्होंने कहा कि कई सारे रिवायतों ने मैंने देखा और वीडियोस में मैंने सुना कि लोगों से कहा गया कि इसको अगर कोई किसी तरीके से कत्ल ना किया जाए, और कत्ल अगर कोई मतलब उसके लाश के साथ किसी भी तरीके की बेहुरमती ना की जाए। अहले बैत जो है इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है हमेशा से रही है। इस्लाम में किसी भी मैयत के साथ बेहुरमती हराम है। उसके आज़ाए बदन को काटना, यानी इस्लाम शरीयत में कहा जाता है मुसला करना, ये मुसला करना हराम है। इस्लाम न कभी इस बात की इजाज़त देता है और न कभी देगा। ये और बात है कि अहले बैत के साथ ये काम किया गया है। करबला में इमाम हुसैन के लाश के साथ ही मुसला किया गया, उनकी लाश के ऊपर जुल्म किया गया। इसी तरीके से और औलाद रसूल हैं जिनकी लाशों के साथ बेहुरमती की गई है, मगर उन्होंने कभी किसी के लिए ये हुक्म नहीं दिया है कि ये अगर हमारा दुश्मन भी है और इसे कत्ल कर दिया जाए तो मसलन इसके साथ ऐसा, बल्कि डायरेक्ट कहा कि इस्लाम में मुसला हराम है, मैयत के साथ कोई भी किसी तरीके की बेहुरमती या बेअदबी नहीं की जा सकती। आज अहले बैत के तमाम जो फर्जंद हैं उनको शहादत जाम जो है पहला दी गई, लेकिन आज भी जो है जो जिन्होंने इस तरीके का काम किया उनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अहले बैत का नाम लेने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है और कल क़यामत तक रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे वहाँ से? देखिए, खुदाई पैगाम को पहुंचाने वाला उसका जिम्मेदार खुदा बन जाता है। जो खुदा के लिए आगे बढ़ता है उसकी जिम्मेदारी भी, उसे जिंदा रखना भी खुदा का काम है। अहले बैत ने हमेशा अपने लिए नहीं जिया है, बल्कि मखलूक खुदा और अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा परवरदिगार ने भी जिम्मेदारी ले ली है कि क़यामत तक हम तुम्हारा नाम इस दुनिया के अंदर बरकरार रखेंगे। लिहाजा उनका नाम आज भी मौजूद है। साहब, आखिरी सवाल, चूँकि रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, और इस महीने में शहादत हज़रत अली हुई है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एक इत्तेहाद पैदा हो आपस में, और जिस तरीके से जो है जिस तरीके की जो दौड़ चल रही है पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए पूरे दुनिया में, इस दौर से किस तरीके से लोग बच पाएँ? मैं पूरी कायनात के लिए सिर्फ एक ही जुमला कहना चाहता हूँ और एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़ाते मौलाए कायनात मरकज़ इत्तेहाद है। वो अगर हमारा इमाम है तो ज़ाहिर है कि दूसरे मज़ाहिब के लिए चौथा खलीफा है और पूरी कायनात के लिए हल्लाले मुश्किलात है, इसलिए कि उसके दर के ऊपर जो भी आया अपना या गैर मज़हब वाला या गैर मज़हब वाला, उन्होंने उनके मसले को हल किया है। लिहाजा पूरी दुनिया को चाहिए कि कम से कम मौलाए कायनात की ज़ात के ऊपर इत्तेफाक करके एक जगह आ जाए। इमाम साहब, फ़िलिस्तीन में जिस तरीके का जो बर्बरियत पेश आ रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा को? दुआ उम्मत मुसलमा को बहरहाल इस सिलसिले में जागना चाहिए। हमारा क़िबला अव्वल है, उसके बारे में सर जोड़ के फ़िक्र करनी चाहिए और सारे मुस्लिम ममालिकों को एक जगह बैठकर एक फ़ैसला लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। और मैं यही कहूँगा कि जिस दिन भी उम्मत मुसलमा एक जगह सर जोड़ के बैठ गई और एक फ़ैसला ले लिया तो पूरी दुनिया के अंदर अमन के साथ हर एक की चीज़ उसके पास पहुँच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना साहब तो कह दिए, उनका आगे तो हम बता नहीं पाए। हम इतना कहेंगे, जो अहले बैत जो पैगाम इंसानियत सारे कायनात को दिया और ये पैगाम इंसानियत क़यामत तक रहेगा। पैदा हुए खाने काबा में और शहादत भी पाए मस्जिद में, राह खुदा में सर को सजदे में जो कटा दे, ऐसा ना था नमाजी कोई अली से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट और हमारी ये कोशिश रही है लगातार आपको तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।